everyone. Hi everyone, welcome to my YouTube channel and those जो नहीं है मेरे चैनल पे, did I say नहीं है? What's that? नमस्ते. जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, Hi everyone, this is Priyanka Bhardwaj and you are here to watch this nonsense. And those who are already familiar with me, you know I'm bad at all this. बट मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ टू मेक दिस यूट्यूब वीडियो स्पेशली बिकॉज मुझे नहीं पता द रियल रीज़न, बट आई थिंक एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम मैं उस पर ज़्यादा एक्टिव बोल सकते हैं, या फिर आई एम नॉट अ पर्सन जो इंस्टाग्राम लाइव आएगा एंड विल इंटरेक्ट विद एवरी वन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. बट मुझे ये वीडियो बनानी थी ऑल दिस टाइम. मुझे नहीं पता कि मैं कब से वेट कर रही हूँ टू मेक समथिंग लाइक दिस, बट येस आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग लाइक दिस एंड ये दिन आ गया. सो आई एम pretty much excited. एंड जिनको नहीं पता है, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एंड आई हैव आस्क्ड सम ऑफ द to my all of the audience कि if you have any questions that you want to ask me and you want me to answer in the next YouTube video, आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड लोगों ने I have received a number of questions, but again some were the questions like who's your favorite actor, who's your favorite actress. So I guess वो questions are not. चलो, anyways, so I have some pretty much excited questions जिनको मैंने लिया है. I think मैंने बहुत कम questions लिए हैं, just starting, तो मैं कुछ mess up नहीं करना चाहती, तो that's why. And just उन सबसे पहले I am really thankful for all of you, those who watch my videos, जिनको पसंद आती है, those who share my videos on their Instagram stories. I receive a lot of messages that you like my videos, and thank you so much for all of love. And if we talk about this video, I don't know मेरी स्माइल नहीं जा रही है फेस से, बट आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मैं हमेशा चाहती थी कि आई शुड इंटरेक्ट विद पीपल मोर ऑफन एंड आप सबको मेरा रियल फेस पता चले, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट यू कैन पोस्ट अ वीडियो, यू कैन पोस्ट अ photo and write down a caption like boss babe wala. I always put on captions like dude if you do not know my value and all that crap. Okay, so main reason मेरा यही था to people to know what exactly I am. Okay, I am so sorry, that was my brother. Again, I don't know where did I lose. So let's answer all your questions. So I need my because I am blind. Yes, I am. So is this okay? Okay, so the first question is from Sunita. This is the same person which I was speaking about ki she is the one who forced me to come live. She is the one कि she'll be calling me even रात को 1-2 बजे कि let's go live, क्या कर रही है and all that. मैं it's very rare कि मैं हाँ बोलूँगी, but yes, she is the one person. So let's answer your question, bro. Your question, she has written I love you. I love you too, bro. I miss you a lot. Like seriously, I miss people. That's real, but yes, I do. By the way, secret behind your beautiful body. Okay, first of all, ये जो person है जिसने ये question लिखा है, she has an amazing body, and question coming from her is like total slap on the face. Still, if this question is there, I do nothing special for my body. It's nothing like, let me just tell you a story कि till I think 10th class, 10th और 11th और 11th तक I was a fat baby. If the people who are watching this video, जो मुझे जानते हैं पहले से, उनको पता होगा कि मैं कैसी थी. I used to have like स्कूल में करेले बनाती थी मैं, अपने दोनों साइड करेले होते थे, एंड आई यूज़ टू लाइक लुक एट माई फ्रेंड्स, और मेरी फ्रेंड्स होती थी. आई स्टिल रिमेंबर, मतलब आई हैव लाइक मेरे बहुत फ्रेंड्स होते थे, नॉट लाइक फ्रेंड्स बट आई नो पीपल, बिकॉज मेरे पापा आर्मी में थे, तो वी यूज़ टू, मेरे स्कूल बहुत चेंज हुए हैं, एंड इवन जो भी मेरे क्लासमेट्स होते थे, दे यूज़ टू लुक लाइक
एट दैट एज वो लोग इतनी पतले होते थे और मैं तो बहुत मोटी होती थी. नॉट लाइक दिस फैट बट येस, मैं होती थी मोटी एज़ कम्पेयर टू अदर्स. तो मुझे तब लगता था कि यार मतलब मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ. आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स. वो हर लड़की करती है जितना मुझे पता है, वी ऑल डू. एंड स्टिल आई थिंक one particular thing that has helped me to maintain my body is totally different from others. It's not workout, it's only dance. मैं आपको एक अपनी स्टूपिड हरकत बताती हूँ. इट्स लाइक इट्स नॉट स्टूपिड बट मेरी बचपन से यही हरकत रही है कि आई थिंक मैं 6th में थी या 7th में थी. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं स्कूल से आती थी एंड जो भी शाम को टाइम मिलता था, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अदर चिल्ड्रन जो लोग पार्क में जाके खेलते थे एंड यूज़ टू डू एवरीथिंग, मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती थी. व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ मैं अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती थी एंड म्यूज़िक ऑन करके आई यूज्ड टू डांस लाइक एन इडियट. मैं डांस करती रहती थी, स्वेट होता था. एंड वो हैबिट मेरी अभी तक नहीं गई है. आई स्टिल डू इट. शाम को इफ़ आई एम फ्री, इवन अगर मैं फ्री नहीं हूँ, आई टेक माई टाइम एंड मैं अपने आप को अपने इस रूम में लॉक कर लेती हूँ एंड लाइक वो डोर बंद है, इट्स क्लोज एंड देन आई पुट ऑन सॉन्ग्स. इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ कोरियोग्राफ करती हूँ या आई स्टार्ट मेकिंग थिंग्स अप, बट आई जस्ट पुट ऑन द सॉन्ग. जो मेरा मन करता है मैं बस डांस करती हूँ. एंड आई थिंक डांस इज़ द वन जो मैंने कॉन्टीन्यूस रखा है. आई हैव नॉट लेफ्ट इट आउट. एंड ऑन दी अदर हैंड येस, मैं थोड़ा वर्कआउट भी करती हूँ. इट्स नॉट बैड टू हैव अ गुड फिजिक. एंड जस्ट वन थिंग कि जो लोग सोचते हैं कि वर्कआउट इज़ ओनली टू गेट लाइक पतले होने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट. मेरे दिमाग में आई थिंक ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्कआउट इज़ नॉट ओनली फॉर लूजिंग वेट. इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो. आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप में रहे, कि इवन दो आपको ये डर ना हो कि यार मैंने कल वो ड्रेस पहननी है, मैं कैसी लगूंगी. सो आई थिंक मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट वर्कआउट एंड डांस. दीज ऑन द वन हैंड इट्स वर्कआउट, ऑन द अदर हैंड इट्स डांस. बट मैं ऐसी हूँ कि मैं वर्कआउट नहीं करूँगी समटाइम्स, बट येस डेफिनेटली डांस. तो इट्स so okay, I've spoken a lot. So the answer is dance. Nothing special. It's nothing like कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ. I have a proper diet. Nothing's like that. मैं she knows I eat like an idiot person. I eat burgers. Burgers are my favorite. I eat pizzas, everything. So yeah, I think आप कोई एक particular आदत रखो. If you wanna go on जॉगिंग करो, जस्ट वॉक. खाने के बाद बस ये मत सोचो कि अब खाना खा लिया, जस्ट सो जाओ थोड़ा बहुत. अपने आप को जितना आप अपने आप को प्यार करोगे उतना बॉडी आपको प्यार करेगी. सो यस, दिस इज द आंसर. ओके, अनदर क्वेश्चन आई हैव, इट इज़ अगेन फ्रॉम इंस्टाग्राम. दैट इज़ इट इज़ फ्रॉम निहाल Kartike, and the question is at what stage you started dancing. So this is a very fun story. Let me just started all कि आई थिंक आई रिमेंबर मेरी मम्मा मुझे बताते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट वॉज 2.5 or 3 years. आई थिंक आई वॉज 3 years ऑफ एज जब मैंने डांस स्टार्ट किया था. एंड इट वॉज नॉट लाइक मैंने स्टार्ट किया था, इट वॉज माई मॉम. मेरी मम्मा थे जिन्होंने वो आई थिंक वो मेरे स्कूल आए थे किसी काम के लिए, एंड उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग, वो लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे. एंड मेरी मम्मा इज़ ऑल अबाउट, शी इज़ वेरी पर्सन जो मतलब है ना, शी इज़ ऑल अबाउट डांस एंड एवरीथिंग. सो उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से पुश किया है. शी हैज़ नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली कि आपको सिर्फ स्टडीज़ में हेल्प किया, उन्होंने मुझे हर एक एक्टिविटी में हेल्प किया है. एंड शी केम टू माई स्कूल एंड उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ डांस कर रहे हैं वहाँ पे. आई डोंट नो व्हाट केम इन टू हर हेड एंड उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया वहाँ पे. तब मुझे डांस का कुछ भी नहीं आता था. एंड हाँ, दैट वॉज द टाइम जब मतलब अ काइंड ऑफ मुझे बस धक्का दे दिया कि जा अब तू डांस कर. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद है कि द सॉन्ग वॉज गोविंदाज अंडे का फंडा सॉन्ग, इफ़ यू रिमेंबर. आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा. दिस वॉज द सॉन्ग जो मैंने फर्स्ट डांस किया है. एंड उसके बाद आई डोंट थिंक मैं रुकी हूँ डांस करने के लिए. या आई थिंक
हर एक चीज़ के पीछे योर मॉम इज़ देयर, सो स्टिल मेरे केस में भी सेम है. शी जस्ट आई डोंट नो, अचानक से शी पुट ऑन मी इन डांस में, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया. एंड आई थिंक दैट्स वॉट चेंज्ड माई लाइफ. उसके बाद वही है कि आई हैव नेवर बीन स्टॉप्ड. आई गॉट टचवुड, आई हैव दी सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स. तो उसके बाद वॉट जनरली यूज टू हैपन इज़, जब भी मैं समर हॉलीडेज़ में अपने नाना नानी के घर आती थी, तो ना मैं बचपन से एक एंटरटेनर रही हूँ फैमिली के लिए. तो वॉट दे यूज टू डू इज़, गाना चला दिया, डेक चला दिया, एंड चलो बेटा डांस करके दिखाओ. एंड सीरियसली मुझे करना पड़ता था. ये हमेशा होता था, मेरी नानी के घर होता था, मामू वगैरह के घर में, मेरी दादी के घर में, हर एक जगह यही होता था कि म्यूज़िक चला दिया एंड बेटा चलो डांस करके दिखाओ ना, इट्स योर टर्न. तो हाँ, मैं ये करती थी. एंड अगेन द सेम स्टोरी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वही होता था. एंड देन मैं हर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी. हर एक डांस होगा तो स्पेशली आई वुड बी द फर्स्ट वन. एंड फिर वही है कि आई यूज़ टू डांस ऑन माई अलोन. मेरे लिए लोगों के लिए alone time, me time, especially when they take care of their skin, or they go on a trip or something like that. But for me, मेरे लिए me time is all about just to shut all the people out of my life and अपने आप को रूम में बंद कर लो and just put on the song and आप डांस करो जितना कर सकते हो, स्वेट करो. एंड वो खुशी ना एक डांसर ही समझ पाएगा कि what is that. वो खुशी एक अजीब ही होती है. एंड हाँ, स्टिल देन आई एम जस्ट लाइक दैट. आई डू द सेम. आई वही करती हूँ मैं, और जो मेरा मन करता है डांस के लिए. एंड या सो प्रीटी मच इट यही है. दीज आर द 2 questions that I really wanted to answer. So in the last, I hope you all get your answers. I seriously, like, if you really like this one video जहाँ मैंने बहुत 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 बोला है, I know that I speak a lot. So if you have any question, just आप comment करो and I will be answering them in the next video. I hope I can take all these things where I am connecting with you all to another level. मैं बहुत चाहती हूँ to spend all this time with you. मैं ये भी I am thinking of going live and all that things. But going live is a little bit मेरे लिए थोड़ा अजीब है. But this I can do. So help me doing this. I hope you guys liked it, and do give it a big thumbs up and subscribe to my channel, guys. Let's just spread happiness everywhere. Bye bye.